اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 39۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ ایک ساتھی ضروری ہے جو تیرے ساتھ دفن ہوگا اور تم مردہ اس کے ساتھ دفن ہوگا۔ اگر وہ شریف ہے تو تیری عزت کرے گا اور اگر کمینہ ہے تو تجھے چھوڑ بھاگے گا، اور یہ ساتھی تیرا عمل ہے، بس جس قدر جلد ممکن ہو تو اپنی اصلاح کر لے۔ کی تشریح: انسان کے نیک اعمال سے زیادہ بہتر کوئی سفر کا ساتھی نہیں ہے۔ نیک عمل انسان کا یار بنے گا اور بد عمل اس کے لیے سانپ اور بچھو بنے گا۔ یہ عمل اور ہنر بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو شیخ بنا لے۔ ہر چیز کا پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر تم نصیحت کرنے والوں کو دیکھو تو خاموشی سے سنو، کچھ حاصل کرنے کی طرف بڑھو اور تکبر نہ کرو۔ بڑائی کا مدار لباس وغیرہ پر نہیں ہے، اس لیے تعلیم حاصل کرنے میں ذلت اور مسکینیت کا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، علم کتابی زبانی سکھایا جاتا ہے اور ہنر عملی طور پر سکھایا جاتا ہے، اور یقین کر لو کہ ذات باری تک پہنچنے کے لیے بھی ہنر علم کے مقابلے میں زیادہ درکار ہے۔ اس ہنر کو سیکھنے کے لیے فقر کی ضرورت ہوتی ہے جو محض شیخ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، نہ بات چیت سے، نہ عمل سے۔ انوار الہی کا علم اولیاء رحمت اللہ علیہم کے دلوں میں ہے، اور کوئی دل ان کے دلوں سے براہ راست حاصل کر سکتا ہے، بات چیت یا کتاب پڑھنے سے نہیں۔ اس راہ کے مسافر کے دل میں اگر کچھ اشارے بھی ہیں تو وہ ان اشاروں کو سمجھنے سے ابھی محروم ہے۔ جب سالک کے لیے نور خداوندی ان اشاروں کی تشریح کر دیتا ہے تو اللہ کی جانب سے علم نشرہ والی بشارت مل جاتی ہے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کا شرع صدر نہیں کر دیا، یعنی ہم نے وہ نور عنایت کر دیا ہے جس سے تم رموز و اشارے بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ اس صورت میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارے سینہ میں یہ باتیں سمجھنے کی استعداد پیدا کر دی ہے۔ ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ علوم و اسرار ذات باری کہیں باہر سے حاصل کیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ علوم خود انسان کے دل اور روح میں موجود ہیں۔ علم نشرہ میں خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن ہر طالب حق اس میں داخل ہے۔ انسان کا دل ایک جامع حقیقت ہے، اس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے دل میں مشاہدہ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص پر لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے کا طعنہ لگے گا، جو کہ کفار کے بارے میں ہے۔ یاد رکھو، ذات حق ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن درمیان میں اس انسان کی ذات حائل ہے، تو پھر ہمیشہ ذات کے مشاہدے کی طلب دل میں ہونی چاہیے۔ اپنے دل میں اس کے مشاہدے کی کوشش کر، در بدر اس کو ڈھونڈتا نہ پھر۔ حضرت حق کو اپنے آپ سے باہر تلاش کرنے والے کی مثال تو یہ تھی کہ روٹیوں کی ٹوکری کسی کے سر پر ہو اور وہ در بدر روٹی مانگتا پھرے، یا ایک انسان گھوڑے پر سوار ہو اور اسی گھوڑے کو تلاش کرے۔ لوگ اس سے پوچھیں کہ تو کس چیز پر سوار ہے تو اسے کہنا پڑے کہ گھوڑے پر، لیکن پھر بھی گھوڑے کی تلاش میں لگ جائے۔ اس گھوڑے سوار سے لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا تو تیرے نیچے موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں، لیکن مجھے گھوڑا نظر نہیں آ رہا۔ وہ گھوڑے کی تلاش میں مدہوش بنا ہوا ہے اور گھوڑا اس کے سامنے موجود ہے۔ صرف انسان کے اوہام اور خیالات راستے میں مانے بنتے ہیں۔ مطلوب کے قریب ہوتے ہوئے انسان کا مطلوب کو پوچھنا، اس مطلوب کا پردہ اور اس مطلوب کے نور کی چمک اس کے لیے ابر جیسی آڑ بن جاتی ہے۔ اس کی نظر کا دھوکہ خود اس کی آنکھ کا پردہ ہے۔ وہی آنکھ جو آڑ کو ہٹانے والی چیز تھی، وہ فوراً خود آڑ بن گئی۔ ایسے طلبکار کا کام خود اس کو بہرا بنا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو پراگندہ خیالی سے ہر حال میں بچنا چاہیے اور یقین سے سمجھ لینا چاہیے کہ ذات باری میری شارک سے قریب ہے، اور اس کے مشاہدے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس کا غم بن جائے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 40۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی تفسیر۔
जिस ने मुख्तलिफ गमों को एक गम बना लिया, अल्लाह उसके सारे गमों के लिए काफी हो गया। और जिसके मुख्तलिफ गम हैं तो अल्लाह इससे बेनियाज है कि वो कौन सी वादी में तबाह हुआ। तेरे होश के पानी को हर जड़ और कांटा चूस रहा है, फलों तक तेरे होश का पानी कैसे पहुंचे। अगर इंसान दुनियावी मामलात के सोच विचार में लगा रहेगा तो आखिरत से गाफिल हो जाएगा। अगर दुनियावी फिक्रों से बचेगा तो आखिरत की फिक्र करेगा। दुनिया और आखिरत की फिक्र में आखिरत की फिक्र अच्छे फल लाएगी। इंसाफ तो यह है कि इंसान फलदार दरख्तों को पानी दे, कांटों और झाड़ियों को देकर अपने फिक्र के पानी को जाया होने से बचाए। भलाई की जगह पर भलाई करना अदल है और कोई काम बेमौके करना जुल्म है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से इंसानी रूह की तरबियत करनी चाहिए, ना कि रूह हैवानी की। दुनियावी मखमसों को सिर्फ अपने कालिब तक महदूद रखो, कलब तक ना पहुंचने दो। तुम्हारी रूह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आला चीज है और जिस्म खरे ईसा की तरह है। बोझ को गधे पर ला दो, ना कि ईसा पर। यह हमाकत है कि ईसा पर बोझ लदा हुआ हो और गधा मजे से चमन में घूमे फिरे। हर अमल का एक महल होता है, सुरमा कान में लगाना हमाकत की बात है। अगर खुशकिस्मती से तू मुजस्समे रूह कल्ब बन गया है तो अब मुजाहिदों की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर तू मुजस्समे जिस्म है तो राह तलबी छोड़कर मुजाहिदों का जहर खा। ये मेहनत और मुशक्कत तेरे जिस्म के लिए मुफीद है और राह तलबी मुज़िर है। इंसान का जिस्म दोज़ख का ईंधन है, इसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तेरा लक़ब भी वही है जो अबू लहब की बीवी का था। कुरान में उसे हम्मालतल खतब कहा गया है, यानी दोज़ख का ईंधन उठाने वाली। जिस्म दोज़ख का ईंधन और रूह सिदरतुल मुंतहा की शाख है, दोनों में फर्क कर ले। जिस्म की शाख धुएं और आग की जड़ है और रूह की शाख आलिम बाला की चीज है। ये दोनों शाखें यकसा नजर आती हैं, जिसकी वजह से आंख की गलत बीनी है। दिल की आंख से देख, दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। इंसान को हर सूरत इस गलत बीनी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पाँव नहीं है तो जिस्म को ही आगे सरकाने की कोशिश करनी चाहिए, बुराई से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान राह तरीकत में कोशा होता है तो अल्लाह खुद रास्ता दिखाता है, और अगर फना इख्तियार करता है तो उसे बका नसीब हो जाती है। इंसान जिस कदर कसरे नफ्सी इख्तियार करता जाता है उसी कदर उसे अल्लाह की तरफ से बुलंदी नसीब होती है। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 41। इस रुबाई कमानी। अगर तू राह तरीकत पर चलेगा तो तेरे लिए रास्ता खोल देंगे, अगर तू फना हो जाएगा तो तुझे बका की तरफ माइल कर देंगे। अगर तू पस्त हो जाएगा तो दो आलम में ना समाएगा, उस वक्त तुझे बगैर तेरे वजूद के दिखाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जना से बचने की कोशिश की तो जुलेखा के बंद किए हुए दरवाजे खुल गए और वो जुलेखा के फंदे से साफ बच गए। दुनिया से बच निकलने के लिए अगरचे दरवाजा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर इंसान कोशिश करता है तो राह जरूर पैदा हो जाती है और इंसान लामकां का रास्ता पा लेता है। इंसान आलिम बाला से जिस रास्ते से आया है वो भी उसकी नजरों से गायब है, इसी तरह वो गायब रास्ते से आलिम बाला तक जा भी सकता है। रास्ता नजर ना आने की वजह से उस रास्ते का ही इनकार न कर, याद रख इसी रास्ते से वापस जाना है। इंसान ख्वाब में रास्ता को बगैर जाने हुए चलता है, इसीलिए अपनी हिस्सी आंख को बंद करके खुद को खुदा के हवाले कर देना चाहिए, तब वो आलिम आखिरत का मुशाहिदा कर सकेगा। दुनिया से तू आंखें बंद न कर सकेगा क्योंकि तेरी लालचवरी नजरों ने तेरी नजरबंदी कर रखी है। तू हर वक्त अपनी सरदारी और बड़ाई के ख्याल से अपने मोतकिदों का मुंतजिर बना हुआ है। तुझे सोते में भी यही ख्वाब इसी तरह नजर आते हैं जैसे उल्लू को ख्वाब में वीराना नजर आता है। तू अपने खरीदारों का तो मुंतजिर रहता है, लेकिन तेरे पास उनको फरोख्त करने के लिए कोई सौदा नहीं है। अगर तेरे पल्ले में कुछ होता तो फिर तू खरीदारों का मुंतजिर ही ना होता। अवाम मकबूलियत और अवाम को गर्विदा करने की वही शख्स कोशिश करता है जो तही दस्त होता है। एक किस्सा इसी माने में सुन ले। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 42। नबूवत का दावा करने वाले आदमी का किस्सा।
एक शख्स ने पैगंबरी का दावा किया। वो एक मस्खरा था जिसने इफलास से मजबूर होकर नबूवत का दावा किया ताकि उसके जरिए से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर सके। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसे जुमले इस्तेमाल करता था जिसके दो मानी होते। एक मानी नबूवत के दावे पर मामूल हो सकते थे तो दूसरे मानी का नबूवत से कोई ताल्लुक न था। उसने अपने रसूल होने का मतलब ये बताया था कि वो अल्लाह के पास से इस दुनिया में आया है और अल्लाह ने मुझे मुल्क अदम से भेजा है। लोगों ने कहा कि अदम से तो हम सब भी आए हैं, तेरी क्या खसूसियत है? उसने कहा, बेशक तुम लोग भी अदम से आए हो, लेकिन ऐसे अंधेपन से आए हो कि तुम्हें ना रास्ते का पता है न मंजिल का। तुम लोग सोते हुए बच्चे की तरह दुनिया में आए हो, जबकि मैं बेदारी की हालत में आया हूँ। लोगों ने बादशाह से उसे सजा देने का मुतालिबा किया। शाह ने उसे बहुत कमजोर देखा और कहा, यह सजा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। शाह ने सोचा कि सजा की बजाय उसे समझाना बेहतर रहेगा। शाह ने उसे तन्हाई में पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है और क्या काम करता है। उसने जवाब दिया, दारुल इस्लाम से मलामत के घर यानी दुनिया में आया हूँ। बादशाह ने तफरीहन पूछा कि तूने नाश्ते में आज क्या खाया है? वो बोला, अगर खाने को कुछ होता तो मैं पैगंबरी का दावा क्यों करता। इन लोगों में पैगंबरी का दावा ऐसा ही मुश्किल है जैसे कोई पहाड़ में से दिल तलाश करे। इन लोगों का यही हाल है। खुदा के पैगाम से इनको कोई निस्बत नहीं। हाँ, अगर किसी हसीन औरत का पैगाम उनके पास लाओ तो ये सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अगर उन्हें खुदा की तरफ बुलाओ तो नागवार महसूस होता है और आखिरत से डराने वाले की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग अल्लाह के पैगाम को जो रद्द करते हैं तो किसी दीन की हमाकत में नहीं करते, बल्कि इन्हें तो इस फानी दुनिया से दिलचस्पी है। इन लोगों की मिसाल उस गधे की सी है जिसका जिक्र आगे आ रहा है। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 43। अवाम की अदावत और उनका औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम से बेगाना होना इसलिए है कि वो उनको अल्लाह की तरफ से हमेशगी के आबे हयात की तरफ बुलाते हैं। जख्मी गधे के जख्म धोने के लिए अगर कोई शख्स उसके फाये उखाड़ता है तो वो गधा उसे लाते मारता है, खुसूसन जब जख्म ज्यादा खराब हो और फाये उन पर चिपके हुए हों तो गधा ज्यादा लाते मारता है। उन दुनियादारों की हिर्स उनके जख्म है और गरबार उन जख्मों के फाये। उल्लू का मस्कन वीराना है। अगर कोई उसे बड़े शहरों की खूबी सुनाएगा तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर कोई अल्लाह का पैगंबर उनको अल्लाह की बातें सुनाता है तो ये दुनियादार उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये पुरानी कहानियां हैं। दरअसल वो खुद पुराने हैं, वरना अल्लाह के बंदों की बातें तो पुराने को भी नया बना देती हैं। मुर्दा दिल उनसे जिंदा हो जाते हैं, उन्हें ईमान का नूर मिल जाता है। उस दिलरुबा की बातें सुन के तू अपने नफ्स पर काबू हासिल कर लेगा। उन बातों से दिल की गिरें खुल जाती हैं, लेकिन इन बातों को सुनने वाले मफकूद हैं। इश्क में अगर एक जिल्लत उठानी पड़ जाए तो तू इश्क को छोड़कर भागता है। तूने सिर्फ इश्क का नाम सुना है, तू उसकी हकीकत से आगाह नहीं। इश्क बहुत मुतकब्बिर और नाज़ों भरा है और बहुत मुसीबतों से हाथ लगता है। इश्क हमेशा वफा करता है और वफादारी ही से हासिल होता है। वो बेवफा पर नजर भर कर भी नहीं देखता। इंसानियत की असल जड़ वफादारी है। दरख्त की जड़ की हिफाजत जरूरी होती है। जिस शख्स में वफादारी ना हो वो उस दरख्त की तरह होता है जो जड़ गल जाने से फलों से महरूम हो गया हो। किसी शख्स के महज इल्म से धोखा न खाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसमें वफादारी का मादा है या नहीं। वफादारी इंसान का असल जौहर होती है। इंसान अगर खुद भलाइयों से महरूम हो तो दूसरों की भलाइयों से शैतान की तरह जलने लगता है और चाहता है कि दूसरे भी भलाई से महरूम हो जाएं। यही हाल अबू जहल का था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते ना देख सकता था। नाकाम इंसान बामुराद इंसानों पर शैतान की तरह हसद करते हैं। अगर इंसान उस इब्लीसी सिफ्त से बचना चाहे तो खुद को कामयाब बनाए। जब इंसान वफादारी से खाली हो तो उसे खामोश रहना चाहिए, वरना उसमें दो खराबियां पैदा होने का इम्कान है। अव्वलन, इंसान आमतौर पर जब ज्यादा बातें करता है तो वो तकब्बुर पर मबनी होती है। जब तक बात सीने में है वो रूह का जौहर है, इसलिए उसे खर्च नहीं करना चाहिए। इंसान का ख्याल मगज है और उसके इजहार के अल्फाज छिलका है। जिस कदर छिलका कम होगा मगज बढ़ेगा। अखरोट
बादाम और पिस्ता को देख ले, अगर उनका छिलका मोटा होगा तो गिरी कम निकलेगी। जब इंसान अहद अलस्त में वफादारी दिखाता है तो फिर अल्लाह उसकी वफादारी की निगहबानी फरमाता है। कुरान में है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्रिया अदा करो और कुफ्र ना करो। एक दूसरी जगह फरमाया, तुम मेरे अहद की वफा करो, मैं तुम्हारे अहद की वफा करूंगा। हम जो कुछ कर्ज अल्लाह को देते हैं यानी कोई नेक काम करते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। जैसे हम जमीन में एक दाना बोते हैं तो उसमें जमीन का फायदा नहीं है बल्कि हमारा फायदा है। दाना बोकर इंसान दुआ करता है कि जो नेमत तूने दी थी उसमें से कुछ वापस जमीन को देता हूं। अमल करके कबूलियत की दुआ कर, बेअमल की ये दुआ खराब बीज की तरह है। अगर अमल के साथ दुआ करना मुयस्सिर ना हो तो दर्द से दुआ कर, इससे मकसूद हासिल हो जाएगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर की गुठली नहीं बोई थी, उनके पास दर्द था, उससे दरख्त उग आया। चारों अनासर आग, पानी, हवा और मट्टी ने अंबिया अलैहिस्सलाम की मदद की है। मोजिज़े महज लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन बातनी करामतें जो अवाम की निगाहों से मख्फी होती हैं वो असल चीज होती हैं और दम बदम बढ़ती रहती हैं। अहद से वफादारी भी बगैर ताइद इलाही हासिल नहीं हो सकती। इसलिए या इलाही, जिन कामों में इस्तकलाल और पायदारी जरूरी है उनमें इस मुनहरिफ हो जाने वाले नफ्स को पायदारी अता कर दे। सब्र की दौलत अता फरमा कि तराजू का पलड़ा भारी कर दे और हमें बहरूपियों से बचा। ऐ मरियम, हमें हसद से बचा ले, क्योंकि हसद से इंसान शैतानी सिफात से मुत्तसिफ हो जाता है। लोग रिश्तेदारों को महज हसद की वजह से कत्ल कर डालते हैं। हमें इश्क हो तो ज़ाते इलाही से हो, जो कि हमेशा बाकी रहने वाला है। दुनियादारी के इश्क से बचा, क्योंकि उसमें आशिक और माशूक दोनों फना हो जाते हैं। जब दुनिया की नापायदार चीज़ों में हसद और रश्क का ये हाल है तो उखरवी नेमतों में हसद और रश्क का अंदाजा कर लो। शैतान तो इंसान से हासिद है ही, इंसान भी हसद में बाज़ औक़ात शैतान बन जाता है। कुरान में शैतानों की दो किस्में बताई गई हैं, एक जिन्नी और दूसरी इंसी। शैतान जब खुद आजिज आ जाता है तो इंसानों में से शयातीन को अपनी मदद के लिए बुलाता है। अगर कोई किसी को राह हक से गुमराह करता है तो जिन्नी और इंसी शैतान उस पर खुशी मनाते हैं। अगर कोई नेकी करता है तो ये रंजीदा हो जाते हैं। दोनों किस्म के शैतान नेकी करने वाले पर गज़बनाक होते हैं। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 44। बादशाह का मुद्दई नबूवत से दरियाफ्त करना कि ज़ुबानी नसीहत के अलावा सच्चे रसूल के पास क्या होता है कि उसकी सोहबत और खिदमत से मिलता है। बादशाह ने मस्खरे मुद्दई नबूवत से पूछा कि वही से साहिब वही और दूसरों को क्या फायदा होता है, उसके मानने वालों को क्या बुलंदी अता होती है। मस्खरे ने कहा, यह माना कि मेरी वही वो वही नहीं है जो पैगंबरों पर आई, लेकिन शहद की मक्खी को जो वही आई थी उससे तो कम दर्जा की नहीं है। वही के दो मानी हैं, एक तो कलाम खुदाबंदी जो किसी फरिश्ता के जरिए नबी पर नाजिल होता है और दूसरे मानी इशारे और दिल में बात के आने के हैं। कुरान में है, और तेरे रब ने शहद की मक्खियों को इल्हाम किया कि पहाड़ों में से और दरख्तों से उन चीजों से जिनसे वो छुपड़ियां बनाते हैं घर बनाए। शहद की मक्खियों के जरिए अल्लाह की वही से दुनिया को शहद और मोम अता हुआ। और कुरान में है, वलकद कर्रमना बनी आदम, बेशक हमने बनी आदम को बड़ाई बख्शी। कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक हमने तुझे कौसर अता की। कौसर जन्नत में एक हौज है, लेकिन उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी और बातनी फयूज मुराद हैं। फिर भी या इंसान, तो क्यों प्यासा है? क्या तू फिरौन सिफ्त हो गया है कि तेरे लिए कौसर कौसर नहीं रही, जैसा कि फिरौन के लिए दरिया नील का पानी पानी न रहा था बल्कि खून बन गया था। तौबा कर ले और हर उस शख्स से बेजार हो जा जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौसर से सैराबी हासिल नहीं। जिस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौसर से सैराबी हासिल की है उसकी आदत इख्तियार कर लो। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मोहब्बत की उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। जो शख्स कौसर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफीद नहीं है वो अबू जहल और अबू लहब सिफ्त है।
اس سے دور رہنا چاہیے، خواہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جب تو اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوگا تب عشق میں سچا ثابت ہوگا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جب تک تو لا یعنی غیر سے نفی اور الا اللہ یعنی اللہ کا اس بات نہ مان لے گا، اس وقت تک تو سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ عشق کا مطلب ہے معشوق کے سوا ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لینا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔